مسیح یسوع کے بابرکت پرفضل عالی قدر اور جلالی نام میں آپ سارے لوگوں کی سلامتی ہو۔ کتنے لوگ یسوع مسیح میں خوش ہیں؟ آئے زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے ہم لوگ بجائیں گے۔ آج صبح کے پہر ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے زندہ قربانی۔ کیا مضمون ہے؟ آئیے جن کے پاس خداوند کا کلام موجود ہے وہ نکالیے میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں سے رومیو کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت آج صبح کے پہر زیر مطالعہ ہوگی۔ یہاں پر لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ رومیو کا خط جو ہے یہ بزرگ پالوس رسول کی گہری تعلیمات کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور بائبل کے جو علماء ہیں وہ اس خط کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کتاب مقدس ایک انگوٹھی کی مانند ہے تو رومیو کا خط جو ہے وہ اس انگوٹھی کے اندر نگینے کی مانند ہے، یعنی نجات کے تعلق سے رومیو کا خط انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر آپ اس خط کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ خط آپ کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات اور پھر خدا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ 12ویں باب کی پہلی آیت ہم نے مطالعہ کی ہے۔ اگر آپ ترتیب سے اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلا باب آپ کو انسان کے گنہگار ہونے کے تعلق سے بتاتا ہے، دوسرا باب خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے، اور تیسرا باب یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان بھی نیک نہیں ہے۔ لیکن چوتھے باب کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو چوتھا باب یہ عیاں کرتا ہے کہ نجات صرف ایمان سے ممکن ہے، اور پانچواں باب خدا کی انسان کے ساتھ صلح کے بارے بتاتا ہے، چھٹا باب یہ بتاتا ہے کہ انسان گناہ کے اعتبار سے مردہ ہے، لیکن مسیح یسوع میں وہ نئی زندگی حاصل کرتا ہے۔ ساتواں باب انسان کی ذاتی کشمکش کے بارے بتاتا ہے کہ جسم جو ہے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ انسان کو خدا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آٹھواں باب روح القدس میں ایک نئی زندگی کے بارے ہمیں بتاتا ہے۔ نواں باب خدا کے غضب اور پھر اس کے بعد خدا کی رحمت کا بیان کرتا ہے۔ 10واں باب انسانوں کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ نجات سب قوموں کے لیے، نجات سب قبیلوں کے لیے اور نجات سب انسانوں کے لیے ہے۔ 11واں باب جو ہے وہ اسرائیل پر، بنی اسرائیل پر خدا کے رحم اور غیر قوموں کے لیے نجات کے بارے بتاتا ہے، یعنی رومیو کا خط اس کے پہلے باب سے 11ویں باب تک ایک ڈاکٹرائن جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے، یعنی انسان
गुनहगार है। फिर नजात सिर्फ ईमान से मुमकिन है। तीसरी बात, मसीह यीशु ने सलीब पर नस्ल इंसानी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। और फिर चौथी बात, हम खुदा के फजल से रास्तबाज ठहरते हैं। हम कैसे रास्तबाज ठहरते हैं? खुदा के फजल से। और फिर पांचवी बात, रूहुल कुद्स हमें नई जिंदगी देता है। यानी 11 अबवाब के अंदर हमें एक डॉक्ट्राइन मिलती है कि कैसे इंसान गुनहगार है, इंसान खुदा की हजूरी में से निकला हुआ है। जितनों ने गुनाह किया है वो खुदा के जलाल से महरूम है, लेकिन वहीं पर हमें एक जिंदा उम्मीद मिलती है। जिस तरह अब्राहम की एग्जाम्पल हमें चौथे बाब के अंदर नजर आती है कि अब्राहम अपने कामों से नहीं बल्कि ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरता है। और फिर ये कि मसीह यीशु में हमारे लिए एक नई जिंदगी है जो रूहुल कुद्स के वसीला से मिलती है। लेकिन जैसे ही 12वें बाब का आगाज होता है और जेरे नजर आयत के अंदर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल डॉक्ट्राइन से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आता है और क्या कहता है? बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें, खुदा की रहमत क्या है? खुदा की रहमत यह है कि उसने हमें गुनाहों से बचाया है। पौलुस पहले 11 अबवाब की बातों को रिपीट करता है और उनको समराइज खुदा की रहमत के अंदर करता है और कहता है, ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर। और रहमतें क्या है? मैं बता रहा था, खुदा ने हमें गुनाहों से बचाया है। खुदा ने हमें मसीह यीशु के वसीला से, मसीह यीशु की कुर्बानी से, मसीह यीशु के गुनाहों को उठाने के वसीला से हमारे गुनाहों को क्या किया है? मुआफ किया है। और फिर बात यहां पर खत्म नहीं होती। पौलुस कहता है, ए भाइयों, खुदा ने हमें अपना फर्जंद भी बनाता है। फिर खुदा हमें रूहुल कुद्स देता है जिसके वसीला से हमें अबदी जिंदगी मिलती है। और फिर खुदा हमें आसमानी मकामों में मिरास का वादा करता है। जब हम बेटे हैं तो फिर हम वारिस भी ठहरे हैं। तो ये खुदा की रहमतें हैं कि कहां से खुदा ने हमें घूरे से उठाया है और तख्त पर हमें मसीह के साथ बैठा दिया है। पतरस कहता है, खुदावंद, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे, बस हमें क्या मिलेगा? मसीह ने कहा, पतरस, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम अपनी बादशाही में आएगा तो तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। ये खुदा की रहमत है जिसके बारे पौलुस बताता है कि तुमको खुदा ने गंदगी में से उठाया था। गुनाह क्या है? गंदगी है ना। और बुजुर्ग दाऊद क्या कहते हैं? कहते हैं, मुन्नू विच गुनाह दे, ज़बूरी काज़म गाते हैं ना कि मैंने गुनाह में सूरत पकड़ी है, मैं मां के पेट में से ही गुनहगार ठहरा हूं। लेकिन पौलुस कहता है, खुदा ने हमें गंदगी में से उठाकर तख्त पर बिठाया है। और पौलुस इन बातों की याद दिलाता है और कहता है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे क्या करता हूं? पौलुस ऑर्डर नहीं देता बल्कि रिक्वेस्ट करता है, इल्तमास करता है। और इल्तमास क्या है? कि अपने बदन, क्या अपने ऐसी कुर्बानी होने के लिए। अब कुर्बानी के बारे किताब मुकद्दस का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप लोग पुराने अहदनामा और हसूसन एबार की किताब का मुताला करते हैं तो एबार की किताब हमें बताती है कि खुदा एक प्रॉपर रोड मैप देता है कुर्बानियों का। और अगर आप उसके पहले बाब की दूसरी और तीसरी आयत का मुताला करते हैं तो उसके मुताबिक खुदा बैल को, भेड़ को और बकरियों को
कुर्बान करने का हुक्म देता है, और वो इंसानों के गुनाहों के लिए है। और फिर एबार पहले बाब की 10वीं आयत भी भेड़ बैल और बकरियों के बारे कुर्बानी का जिक्र करती है। और अगर हम एबार पहले बाब की 14वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर कमरियों और कबूतर की कुर्बानी का जिक्र मिलता है। यानी पुराने अहदनामा के अंदर कुर्बानी का निजाम यह था कि बैल, भेड़, बकरियां, कबूतर, ये सब इंसानों के गुनाहों के लिए कुर्बान किए जाते थे। खुदा को खुश करने के लिए जानवरों, परिंदों की कुर्बानी की जाती थी। और किताब मुकद्दस बताती है एबार की किताब के अंदर कि जब इनको सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदा के हजूर रखा जाता था, तो जब कुर्बानी की जाती तो इनकी खुशबू कहां पर? आसमान तक खुदा के पास जाती, और खुदा का दिल क्या हो जाता? खुश हो जाता था। जब खुदा का दिल खुश होता था तो खुदा इंसानों पर रहम करता था, खुदा इंसानों को मुआफ करता था। अब यहां पर पौलुस कहता है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो जिंदा है, जो क्या है? जिंदा है। अब जिंदा कुर्बानी से मुराद क्या है? पुराने अहदनामे के अंदर जब जानवरों को कुर्बान किया जाता तो क्या वो जिंदा रहते? नहीं जिंदा रहते ना, नहीं जिंदा रहते, वो मर जाते थे। लेकिन जिंदा कुर्बानी से मुराद ये है कि हम लोग एक ऐसी जिंदगी बसर करें जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हो। हमारी जिंदगी का मकसद खुदा के लिए जीना है। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा, लेकिन मुझ में कौन जिंदा है? और पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ कुर्बान हुआ हूं। जिंदा कुर्बानी से मुराद यह है कि आपकी जिंदगी के अंदर जितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुदा से सेपरेट करती हैं, जो आपको खुदा से जुदा करती हैं, जो आपको खुदा से दूर लेकर जाती हैं, उन चीजों को खुदावंद के हुजूर कुर्बान कर देना और आपकी जिंदा जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए हो। पौलुस कहता है, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। पहले पौलुस क्या करता था? लोगों को मारता था, कूटता था, पकड़कर ले जाता था, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। लेकिन अब क्या कहता है? तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो खुदा के लोगों। मसीह यीशु में जिंदा कुर्बानी यह है कि अब हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का मालिक मसीह यीशु है, जिसने उसकी कीमत अदा की है, जो हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है। और पुराना अहदनामा जानवरों की कुर्बानी के बारे में बात करता है, लेकिन नया अहदनामा यीशु की कुर्बानी के बारे में बात करता है। मसीह यीशु की जिंदगी का मकसद क्या था? मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि बाप की मर्जी को। और गतसमनी बाग में मसीह यीशु क्या कह रहे हैं? ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब मसीह यीशु खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर रहे थे तो मसीह ने सलीब पर कहा कि मुझे, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। और मसीह यीशु ने मेरी जिंदगी में क्या कहा? मुझे अपनी जान देने का और फिर उसको लेने का इख्तियार है। और मसीह यीशु ने क्या कहा मरथा और मरियम से? कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। और मैं बता रहा था कि रोमियो का 6वां बाब क्या बताता है कि गुनाह के एतबार से जो लोग मर जाते हैं वो मसीह यीशु में
नई जिंदगी गुजारते हैं। यानी जो गुनाहों के एतबार से मुर्दा है वो मसीह यीशु में जिंदा है, और यही वो कुर्बानी है जिसकी बाबत पौलुस कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा है और क्या है, पाक है। अब पाक जिंदा कुर्बानी तो ये है कि हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। पाक कुर्बानी क्या है? पुराने अहदनामे के अंदर जो जानवर कुर्बान किए जाते थे, इबार की किताब उसका 22वां बाब और 17वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक खुदा का कलाम यह है कि जो कुर्बानी खुदावंद की हजूरी के अंदर लाई जाती है उसमें कोई ऐब क्या ऐबदार कुर्बानी को खुदावंद कबूल करता था? क्या जिस कुर्बानी के अंदर कोई कमी होती थी, जिस्म पर कोई दाग होता था, जिस्म पर कोई झुर्री होती थी, जिस्म पर कोई जख्म होता था, क्या वो कुर्बानी काबिल कबूल थी? हरगिज नहीं। तो अगर मसीह जानवरों की कुर्बानी को कबूल नहीं करता, मसीह यीशु की कुर्बानी को खुदा ने क्यों कबूल किया? क्योंकि वो कुर्बानी पाक थी। वो कुर्बानी क्या थी? बेशक हमारे गुनाह मसीह यीशु पर थे, लेकिन मसीह यीशु ने एलानिया खड़े होकर कहा था, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह को, मसीह यीशु गुनहगार नहीं था लेकिन वो हमारे लिए गुनाह बना है। और मसीह यीशु जब अदालतों के अंदर पेश किए गए हैं, पौलुस ने, दूसरी अदालतों ने मसीह पर कोई इल्जाम साबित नहीं किया है। मसीह के लिए हाथों को धोया गया है और कहा गया है, मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता, इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, इसके खून तुम और तुम्हारी औलाद की गर्दनों पर है, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता हूं। मसीह 6 अदालतों के अंदर पेश किया गया है, लेकिन मसीह पर कोई किसी किस्म का गुनाह साबित नहीं हुआ है। और अगर खुदा ऐबदार कुर्बानी को कबूल नहीं करता तो वो इंसानों की गंदी जिंदगी को भी कबूल नहीं करता है। खुदा ऐसी कुर्बानियों को, ऐसी इबादत को अपनी हजूरी में कबूल नहीं करता है। लोग चर्च तो आते हैं, अगर वो गंदगी के साथ आएंगे, अपने गुनाहों के साथ आएंगे, तो उनकी इबादत कबूल नहीं होगी। पौलुस कहता है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक है और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। गुनाह से मुबर्रा जिंदगी खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है कि ऐसे लोग उसकी हजूरी के अंदर आए जिनके बदन मस्बा पर जले हुए हो और मस्बा की आग ने उनके गुनाहों को जलाकर भस्म कर दिया हो और रूहुल कुद्स के साथ वो नई जिंदगी गुजार रहे हो। और किताब मुकद्दस क्या बताती है कि खुदा के लोग रूह की हदायत से चलते थे। हाँ, जब एक शागिर्द की जगह खाली होती है तो रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा की मर्जी को मालूम करते हैं। जब रूहुल कुद्स से भर गए हैं तो खुदा के कलाम को बयान करते हैं। अब जिंदा कुर्बानी, पाक कुर्बानी कैसे गुजार सकते हैं? पहली बात, अपनी मर्जी को छोड़ देना। अपनी मर्जी को, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, खुदा की मर्जी को जानना। और इसकी दूसरी आयत के अंदर क्या लिखा है? और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो।
हाँ, खुदा की मर्जी को मालूम करते रहो, यानी कंटिन्यू आपने खुदा की मर्जी को जानना है। जिंदा, पाक और पसंदीदा कुर्बानी यह है कि हर सुबह आप खुदा की हजूरी के अंदर बैठ जाएं और खुदा की पाक मर्जी को मालूम करें। हर रात आंसुओं के साथ खुदा की हजूरी में ठहरे और खुदा की पाक मर्जी को मालूम करते रहें। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ पता की साडा दिल है, ਅਸੀਂ 10 मिनट दुआ कर ली, खुदा की मर्जी क्या है, क्या ये हमने कभी जाना है? हम अपनी मर्जियां खुदा को बताते रहते हैं, खुदावंद ऐसा कर मुझे ये चीज दे दे, खुदावंद ऐसा कर मुझे वो चीज दे दे, खुदावंद ऐसे कर मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दे। क्या हमने कभी खुदा की मर्जी को मालूम किया है? जिंदा कुर्बानी, पाक कुर्बानी, खुदा की पसंदीदा इबादत यह है कि आप खुदा की मर्जी के बारे मालूम करें और फिर अपने वक्त को खुदा के लिए वक्फ कर दें। बाज लोग समझते हैं कि 80 रुपए पैसे दे नाल खुदा नू खुश करना। क्या खुदा वक्त का हिसाब से नहीं मांगता है? खुदा आपका वक्त आपसे नहीं मांगता है ताकि वो वक्त आप खुदा के साथ इबादत के अंदर गुजारें, दुआ के अंदर गुजारें, रोजे के अंदर गुजारें, बाइबल को पढ़ते हुए गुजारें। आज बंदे कहते पता क्यों? खुदा की खिदमत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। खुदा के लोगों, ऐसा नहीं है कि खुदा की खिदमत के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, बल्कि इब्लीस आपको इतना बिजी कर देता है कि आपके पास वक्त नहीं निकलता है। खुदा ने क्या कहा बनी इस्राएल कौम से? 6 साल काम करे हो, 7वां साल कोई काम नहीं करना। क्या आज का इंसान इतनी हिम्मत कर सकता है कि एक पूरा साल काम ना करे? अगर 6 दिन के अंदर ਤੁਹਾਡੀ पूरी नहीं पैंती, 7वें दिन पै जानी। इतवार के दिन ज्यादा मेहनत हम करते हैं। वो मुशक्कत कौन करांदा? वो इब्लीस करांदा। जिस मुशक्कत के बारे आप देखते हैं ना कि जब गुनाह किया ना इंसान ने, खुदा ने कहा अब तू क्या करेगा? मुशक्कत से रोटी खाएगा। हाँ, इब्लीस मुशक्कत कर, संडे नूं ते कंफर्म इब्लीस ही मुशक्कत करांदा तुहाडे को। जिंदा, पाक, माकूल इबादत यह है आप अपनी मर्जी को छोड़ दें, खुदा की मर्जी को जानें कि खुदा की मर्जी आपके लिए क्या है। अपना वक्त खुदा को देना शुरू कर दे, खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा, खुदा आपके हालात को बदल देगा, खुदा आपका सब कुछ बदल कर रख देगा। खुदा को वक्त देना शुरू कीजिए और फिर अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को, अपनी दौलत को खुदा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ये भी जिंदा इबादत है, ये भी माकूल इबादत है, ये भी पाक इबादत है। मसीह ने क्यों कहा दौलतमंद शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है? सबब क्या है? क्योंकि दौलतमंद शख्स दौलत की फिक्र के अंदर रहता है। यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ क्या कर, भेज दे और मेरे पीछे आना शुरू कर दे। खुदा के लोगों, जिंदा पाक कुर्बानी ये है कि आप अपनी मर्जी को छोड़ दें, खुदा को वक्त देना शुरू करें, अपनी दौलत, ताकत, वसाइल खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और पाकीज़गी किन बातों के अंदर है? आपकी जुबान के अंदर है, आपकी सोच के अंदर है, आपके किरदार के अंदर है, आपके कारोबार के अंदर है, आपकी दोस्ती के अंदर है। हाँ, जो कुछ दिल में होता है वो जुबान के ऊपर आता है। जुबान पता नहीं की कहती रहती। तो संडे को हम लोग फरिश्ते बने होते हैं। किरदार हमारा कैसा है? और इतवार के दिन हम फरिश्ते हैं। हमसे ज्यादा इबादत करने वाला कोई शख्स दुनिया के अंदर हमें नजर नहीं आता है। खुदा के लोगों, खुदा को पसंदीदा सिर्फ कुर्बानी नहीं है, बल्कि पाक कुर्बानी है, बल्कि जिंदा कुर्बानी है, बल्कि माकूल इबादत यही है कि आप
अपने बदनों को खुदा की हजूरी के अंदर रख दे, खुदा के मस्बा के ऊपर रख दे। खुदा ने अब्राहम से कहा, खुदा ने अब्राहम से बात की और अब्राहम से कहा, अब्राहम अपना इकलौता बेटा मेरी हजूरी में क्या कर दे, कुर्बान कर दे। अब्राहम ने खुदा को कोई उज़र पेश किया? जिंदा पाक इबादत कुर्बानी, खुदा को पसंदीदा कुर्बानी क्या बता रहा था कि अपनी मर्जी को छोड़ देना है, खुदा की मर्जी पर अमल करना है। खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपना इकलौता बेटा मेरी हजूरी में कुर्बान कर दे। अब्राहम ने लकड़ियां इकट्ठी की, अपने बेटे पर लादी और निकल पड़ा। पुत्र ने पूछा, बाप हम कहां पर जा रहे हैं? उसका आंसर क्या था? हम खुदा की इबादत करके आते हैं। क्या करके आते हैं? खुदा की बात मानना उसकी इबादत है। चर्च में, सिर्फ चर्च में आना इबादत नहीं है, चर्च में आना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी के साथ, ऐसी जिंदगी के साथ जो गुनाह से भरी हुई है, खुदा की हजूरी में आने का कुछ फायदा नहीं है। अब्राहम ने कहा, हम खुदावंद की इबादत करके आते हैं। जब पहाड़ पर गया है, अपने बेटे को बांध लिया है और छुरी चलाने लगा है, तो क्या आवाज आती है? अब्राहम अपना हाथ ना चला। कुर्बानी के लिए कौन है? बर्रा मौजूद है खुदा के लोगों। जब आप खुदा की मर्जी पर अमल करते हैं, अपनी मर्जी को छोड़ते हैं, तो खुदा का इकलौता बेटा यीशु, जिसका इंतजाम खुदा ने उन लोगों के लिए किया था जो ईमान के साथ उसके पास आते हैं, अपनी मर्जी को छोड़ते हैं, अपनी जाती जिंदगी में से निकल आते हैं, उनके लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश किया है। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? मुकाशफा की किताब में लिखा है, मैंने एक ज़िबा किया हुआ बर्रा क्या देखा है? खड़ा ज़िबा, बर्रा ज़िबा भी हो गया है और खड़ा भी है। ये जिंदा कुर्बानी है कि आप अपने आप को खुदावंद की हजूरी के अंदर रख दें। मसीह यीशु ने कहा, मैं हाजिर हूं, हाँ मुझे भेज। कौन खुदावंद की तरफ से जाएगा? मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। क्या आज हम लोग मसीह यीशु की मानिद हाजिर हैं? पौलुस क्या कहता है? ए भाइयों से मुराद क्या है? मसीह यीशु दे भरा, मसीह यीशु के भाई, खुदा के फर्जंद, यानी वो बातें जो खुदा के अंदर हैं वो मसीह यीशु के अंदर हैं, जो मसीह यीशु के अंदर हैं वो पौलुस के अंदर हैं। और पौलुस क्या कहता है? तुम मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता हूं। और माकूल इबादत के लिए जो यूनानी जुबान के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, इबादत के लिए, माकूल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लॉजिके, उसका मतलब है सोच समझ कर, अक्लमंदी से, शौर से, सोच विचार के बाद। और इबादत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है खिदमत या वक्फ शुदा जिंदगी, यानी सोच समझकर अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ कर देना। और कुर्बानी की एक खासियत है, वो ये है कि जब वो मज़बा पर रख दी जाती है फिर वो उठाई नहीं जाती है। खुदा के लोगों, आज माकूल इबादत ये है, जिंदा कुर्बानी ये है, पसंदीदा कुर्बानी ये है, कामिल कुर्बानी ये है कि आज बैल नहीं, भेड़ नहीं,
बकरियां नहीं, कबूतर नहीं, आपके बदन खुदा के मस्बा पर रखे जाए और फिर कभी उन्हें उठाया ना जाए और आग हमेशा मस्बा पर जलती रहे। रूहुल कुद्स की आग आपकी जिंदगी के अंदर लगी रहे। और किताब मुकद्दस में रोमियो का खत क्या बयान करता है? रूहुल कुद्स के वसीला से नई जिंदगी, आप मस्बा पर हो और रूहुल कुद्स की आग आपके बदनों के अंदर लगी रहे। खुदा के लोगों, ये एक दावत है। पौलुस सारी रहमी बातें बताकर फिर आपसे इल्तमास करता है, जब खुदा ने आप पर रहम किया है, खुदा ने आप पर तरस खाया है, तो हमें क्या करना है? उसके रिस्पांस के अंदर, उसके जवाब के अंदर, इंसानों की नेकियां हम सारी उम्र याद रखते हैं। अगर भाई शबाज ने किसी ने नेकी की है ना, सारी जिंदगी बंदे याद रखें। अगर खुदा की रहमतों का शुमार करें तो वो आसमान पर सितारों से और जमीन पर रेत के जर्रों से भी इंतहाई ज्यादा है। खुदा के लोगों, खुदा का बंदा पौलुस खुदा की रहमतें याद दिलाता और फिर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा है, पाक है और खुदा को पसंदीदा है। पहला पतरस पहले बाब की 15वीं आयत के अंदर क्या लिखा है कि तुम पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पाक है। यानी जैसे खुदा पाक है, वो ऐसी पाकीज़गी मसीह यीशु में देखता है और वही पाकीज़गी आज यीशु के वसीला से वो हमारे अंदर देखना चाहता है। और यही पाकीज़गी जिंदा कुर्बानी है, यही पाकीज़गी पसंदीदा कुर्बानी है और यही पाकीज़गी माकूल इबादत है। खुदा के लोगों, आए हम मसीह यीशु में खुदा बाप का शुक्र करें जिसने हमारे लिए हमारी आंखों के सामने नजात को तैयार किया है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है और फिर उसके वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से हमें बहुत बड़ी नजात दी है। मिसाल के तौर पर, अगर आप पर सजा का हुक्म है, सजाए मौत का हुक्म है और कोई बादशाह आपके बदले अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर देता है, वो आपके लिए अपने इकलौते बेटे को पेश कर देता है, आप बरी हो जाते हैं, आप रिहा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बादशाह की बात को या बादशाह के हुक्म को नहीं मानते हैं, तो फिर कैसी सिचुएशन होगी? खुदा के लोगों, खुदा ने आपके लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया है और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा को पसंद आया है कि वो उसे कुचले। आपकी और मेरी जगह पर यीशु कुर्बान हुआ है। यीशु इसलिए कुर्बान हुआ है ताकि आसमानी बाप के साथ हमारा मेल मिलाप करा दे, हमारी सुलह करवा दे। और किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मसीह यीशु के वसीला से हम खुदा के फर्जंद हैं और आसमान की मेरास हमारे पास यीशु के वसीला से है। जब यीशु ने आप पर रहम किया है, यीशु के वसीला से आप पर तरस खाया गया है, तो आए आज मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, अपनी जिंदगियां मसीह के पास ले आएं, अपनी जिंदगियां यीशु के खून से पाक बनाएं, अपने बदनों को खुदा के मज़बा पर रखें और फिर कभी उनको उठाने की कोशिश ना करें। जो उठाने की कोशिश करते हैं या उठा लेते हैं, कलाम कहता है वो लूत की बीवी को जरूर, जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है, वो लूत की बीवी को याद रखे। मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ है। आए अपने बदन जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए नजर करें। लास्ट बात है, काइन और हाबल दोनों अपने हदियों समेत खुदावंत की हजूरी के अंदर आते हैं, लेकिन कलाम क्या बताता है कि खुदा सिर्फ कुर्बानी को नहीं देखता है, खुदा काइन और हाबल को भी देख रहा था। खुदा आपके दिल
پر نظر کرتا ہے۔ خدا صرف آج آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ آپ لوگوں کے دلوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے بدلوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کی زندگیوں کو دیکھ رہا ہے کہ کیا وہ مصباح پر ہیں یا نہیں ہے، کیا آپ کی زندگی مسیح کے مطابق ہے یا نہیں ہے، آپ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں ہے، یا آج بھی صرف میری ہو رہی ہے۔ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ خدا نے ہابل اور اس کے ہدیے دونوں کو قبول کیا ہے، قائن کو اور اس کے ہدیے دونوں کو کیا کیا ہے؟ ریجیکٹ کیا ہے۔ آپ اگر آج عبادت کی قربانی خدا ان کی حضوری میں گزران رہے ہیں تو آپ کی زندگی کا سٹیٹس کیا ہے؟ خدا پہلے آپ کو دیکھتا ہے، پھر آپ کی قربانی کو دیکھتا ہے۔ آؤ خدا کے لوگوں، اپنے آپ کو خدا کے مذبح پر رکھ دیں اور پھر کبھی اس کو نہ اٹھائیں۔ مذبح پر آپ زندہ نہ رہیں بلکہ مسیح آپ میں زندہ ہو۔ آپ گناہ کے اعتبار سے مر جائیں، مسیح یسوع میں نہیں زندگی کا آغاز کریں جو روح القدس کے وسیلہ سے ہو، اور روح القدس کی آگ آپ کے بدنوں میں ہمیشہ لگی رہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سروں کو جھکائیں گے۔